Hey friends, welcome to English is Must. Friends, there are a lot of words which come across in our daily life which we do not pronounce correctly, or we can say the words which are very difficult to pronounce. So in these situations, two cases happen. First one is when the other speaker is trying to say something or is saying something and you're not getting it, you're not understanding it because you haven't heard of this pronunciation and you're not sure about what is he saying. And the second situation arises when you are saying a word but the other person is not able to grasp it because you're not pronouncing it correctly. So in order to avoid these kinds of problems or hurdles while speaking, while enhancing your speaking skills, you need to work on your pronunciation too. So friends, I will make 4 to 5 videos on the pronunciation only, on those words which are difficult to pronounce and which are used in our daily life. So without wasting time, let's start the video. So first word is here. So think and tell me, how do we pronounce this word? So we pronounce this word as conscience. 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 And can you tell me what does it mean? It means a moral way of a moral sense of thinking what's wrong or what's right. In Hindi we say आपका ज़मीर, like आपकी अंदर की आवाज़ कैसी है, कि जैसे आप कोई काम करते हो तो आपको अंदर से पता होता है कि ये काम सही है या गलत है, तो वो आपका कौन बताता है, वो अंदर की उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्शियस. सो मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आई थिंक क्लियर होगी. इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? कॉन्शियस. नेक्स्ट वर्ड इज, tell me, how do we pronounce it? This is not buffet, this is buffet. जो टेबल होती है और उस पर बहुत सारी डिशेस लगी होती है, several dishes are there on a single table and you need to serve it yourself, right? Nobody will serve you. आपको खुद ही सर्व करना होता है, उसको बोलते हैं buffet. It's a French word, so it's not pronounced as buffet. The pronunciation will be like buffet. Next word है, it means everybody knows the meaning of this word, but no, I think only 50% people will be pronouncing correctly. So this word is pronounced as naked, not naked. Naked नहीं बोलना है इसको, naked. How do we pronounce this word? Naked. Next word है, oh, India is the largest democracy in the world. So इसको democracy नहीं बोलना है या फिर democracy नहीं बोलना है. It's democracy. 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 Democracy से एक और word याद आ रहा है मेरे को. That is bureaucracy. Bureaucracy. अब जो इसमें word है ये वाला, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट टेल मी. इट मीन्स कि कोई सेवरल डिपार्टमेंट है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे सीबीआई होता है इंडिया में, आपने सुना होगा सीबीआई, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो इसको कैसे बोलते हैं हम? ब्यूरो. वैसे ब्यूरो से बना है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? व्हाट डज ब्यूरोक्रेसी मीन? सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, एंड सो इट मीन्स लाइक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है. मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, लेयर है, हर एक चीज़ का मतलब एक डिपार्टमेंट है. अगर आपको कोई भी काम करना है तो बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना होगा. दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेंटोर. इसको मेंटर नहीं प्रोनाउंस करना है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मेंटोर. ठीक है, आपके टीचर्स क्या होता है? मेंटोर.
मतलब समवन दैट गाइड्स यू, तो वो होता है मेंटोर. नेक्स्ट वर्ड इज हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड? काड्र. 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 काड्र मतलब होता है किस डिपार्टमेंट से, या फिर हम कह सकते हैं किस ग्रुप ऑफ पीपल से आप बिलोंग करते हैं. लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप आईएएस काड्र से हो, यानी कि आप आईएएस काड्र से हो. आप आईपीएस काड्र से, यानी आईपीएस डिवीजन से हो, राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेल मी हाउ डू वी प्रोनाउंस एमेटर. एमेटर. इसकी मीनिंग को लेके और इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं. लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन. सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज amateur, and this word means when you're non-professional, you're doing it just for like you're not doing for money or you're not doing for earning, but you are doing as a non-professional. मतलब एकदम inexperienced हो इस चीज़ में, तो आपको बोला जा सकता है amateur. कोई भी स्पोर्ट होता है आप उसमें एकदम इनएक्सपीरियंस्ड हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू हो, तो आप बोल सकते हैं एमेटर. इससे मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है, दैट इज, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सो प्रोनाउंसिएशन विल बी नोविस. नोविस यानी बिगिनर. बिल्कुल आप उस चीज़ में या फिर उस प्रोफेशन में या किसी भी चीज़ में एकदम बिगिनर हो, एकदम ग्रीन हो, एकदम इमेच्योर हो, तो आपको बोलेंगे नोविस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव बहुत ही यानी कॉमन वर्ड है, बट प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी डिफरेंट है. सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज व्हीकल. 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 नेक्स्ट वर्ड इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सुएज. सुएज यानी सू की एज ऐसे आप याद कर सकते हैं, सुएज. सुएज. इसको सीवेज मत बोलना. फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी से मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है, मोनार्की. मोनार्की, इसको मोनार्की मत बोलना, इट्स प्रोनाउंस्ड एज मोनार्की. मोनार्की मतलब जहाँ पे मोनक राज करता है, मोनक रूल करता है. और मोनक कौन होता है? या कोई भी किंग या भी कोई भी क्वीन, मतलब एक हेड होगा, वही रूल करेगा पूरी ऑल ओवर द नेशन. दैट इज कॉल्ड मोनार्की. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए. और फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिए, साइन इन कीजिए, और एक ग्रुप है जो मैं बना रही हूँ फॉर प्रैक्टिसिंग, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी कैन प्रैक्टिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.